look depicts that however modern you get, however advanced you get, you should always have a background of your culture, of India, and this is what it depicts, modern look with sari. Thank you. Media, low media. Hi, hello everyone. All good. आप कैसे हैं? इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा ही बहुत ही अच्छा ये एक अवार्ड फंक्शन है. दिस इज़ द 8th सीजन ऑफ इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड. आई एम सो ग्लैड दैट इट इज़ डूइंग वेल एंड आई होप कि आगे सालों साल ये इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड चलता रहे. मैम आपका न्यू प्रोजेक्ट क्या आने वाला है? Yes, Doon Kand finally release होने वाला है because of some technical issues. I know I'm also very sad about it because of some technical issues. वो 20th June को release नहीं हो पाया and I know everybody, all my fans are very disheartened about it. But soon in July it is going to be on air and I hope जितना मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ मेरे दून कांड के आने का. And I know that you guys are also waiting for that. And another is Zakhum, जो मैंने अभी शूटिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है and just waiting for that to be released. That's an MX original that will be coming on MX Player. Oh, the credit goes to my stylist and I just like this simple yet very fairy tale looking gown, so I wore it for today. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. This is happening for the 8th time, and I'm really happy. It has succeeded so much. Like this is happening for the 8th time. I'm really excited. I'm looking forward to it, and I'm really glad about it. Let's see. Yeah, they have nominated. Yeah. My look. I'm wearing a printed suit. Sorry. I'm wearing a printed suit, and I'm wearing shoes. They have put a line on those shoes. So yeah. Bubbly Bouncer, I just wrapped up my film. And Bubbly Bouncer is being directed by Madhu Bhandarkar ji, and who has been one of the greatest visionary in our film industry, who has given several hits, and I'm really looking forward to it. I'm really excited because this time I'm playing a very different character which I have played before. Like earlier I have played a fitness champion, now I'm playing a software engineer, which is totally opposite to the role which I have played so far. Yeah, but it's a new.
Tamanna, she is a very, I would say कि she is a person who is very hardworking, and I still remember I used to get up at 5 a.m. in the morning, and I have seen her working out. So that's what you look into a co-actor who is working hard, who is there, who is always in the scene. So yeah, she's very cooperative, I would say. Thank you. Hi. Good, good. How are you? आज आप आए हो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड है तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? I'm so glad. मैं इतनी खुश हूँ कि I've been invited here and I've also been nominated. And it is an international platform and the theme was so amazing, which was Met Gala. So obviously, I thought of depicting our थोड़ा Indian style और Indian culture को कैसे Western और उसमें incorporate करके our Indian designers are so accepting. आपका न्यू प्रोजेक्ट कब आने वाला है? मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आने वाला है? बहुत जल्द आने वाला है. क्या? जिद्दी दिल को बहुत मिस करती हूँ यार, बिकॉज द एंटायर टीम वाज लाइक फैमिली एंड इट हैड सच यंग एंड डिफरेंट वाइब. तो हर दिन काम करने में भी बहुत मज़ा आता था, हर दिन चैलेंजिंग कुछ करने को मिलता था. सो आई थिंक आई एम वेरी लकी. आई मिस इट दो, बट आई नो लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन. सो better projects maybe. And after the success of Zindagi Dil, what kind of project that you are looking forward to? I think जिद्दी दिल में इतना एक्शन करने को मिला. नाउ I want to do action oriented films or even TV serials or web shows, whatever comes. I am looking forward to doing action oriented. Thank you. Iconic Awards Season 8. I just want to thank Nagman and his entire team. हर सीज़न में इनवाइट करते हैं, हर सीज़न में इनक्रेज करते हैं. एंड आइकॉनिक अवार्ड्स के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है, आइकॉनिक है. ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बिकॉज कुछ साल पहले जब मुझसे ये पूछा जाता था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता था कि बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव लीड रोल, बेस्ट विलन. बट मज़े की बात है कि ऑडियंसेस, व्यूअर्स और जो अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अब मुझे अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड करने लगे हैं. कोई वर्सेटाइल एक्टर में अवार्ड देते हैं, कोई बेस्ट परफॉर्मर में देते हैं. सो अब जो थॉट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजर्स की, फैंस की, व्यूअर्स की, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हो गए सारे लोग. और क्योंकि मुझे शो में बहुत ही अलग अलग लुक में किरदार में प्ले कर रहा हूँ विलन का ही, बट कभी कभी क्यूट हो जाता है, कभी कभी लवेबल हो जाता है, कभी कभी डिस्गाइज लुक में आ जाता है, अपना रंग बदलता है, अवतार बदलता है. इस वजह से कह पाना मुश्किल है कि कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है. इन द फ्यूचर अगर मुझे कोई स्टाइलिश एक्टर का अवार्ड दे दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. नागिन तो बहुत ही मतलब अचानक से मेरे पास कॉल आया, बिकॉज बालाजी टेलीफिल्म्स का ही है.
अचानक से कॉल आया कि होली स्पेशल में हम एक महा सपेरा ला रहे हैं, महा सपेरा। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा एंड मैम की विश थी, मैम्स विश इज़ माय कमांड। तो मैंने कहा चलो करते हैं एंड इसी तरह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वो एक्टर्स काफ़ी अच्छे थे, डायरेक्टर रंजन सर, उनके साथ काम करने में मज़ा आया। तो 2-3 एपिसोड का ही था बिकॉज इट वॉज अ गेस्ट अपीयरेंस बिकॉज आई हैड टू गेट बैक टू कुंडली अगेन। सो अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी। हाँ डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है अगर कोई आपके काम को सराहे और एक्नॉलेज करे। इट्स अ बिग डील। बहुत मेहनत लगती है, कई साल लगते हैं, बहुत सपने होते हैं एंड व्हेन यू गेट समथिंग फॉर द वर्क दैट यू हैव डन इट ऑलवेज फील्स गुड। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये झुकी झुकी सी नज़र बहुत स्पेशल शो है मेरे लिए और अरमान जिस कैरेक्टर के लिए मुझे अवार्ड मिला है इट विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी एंड दिस हैज़ मेड इट ऑल द वे मोर स्पेशल। इस पर्टिकुलर शो को लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम द कास्टिंग, जब पहली बार मुझे ये शो सुनाया गया था तभी से आई वॉज ब्लोन अवे बाय द स्टोरी। बहुत बहुत प्यारी स्टोरी थी, एक सोशल मैसेज के साथ थी एंड द वे इट वॉज क्रिएटेड, जिस तरीके से लिखा गया, जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया, जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, आई थिंक एवरीथिंग वॉज फिनोमिनल। और बहुत ज़्यादा सटल तरीके से हमने कोशिश की उस स्टोरी को दिखाने की एंड द ऑडियंस ऑल्सो लव्ड द शो। सो आई थिंक आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत सारी मेमोरीज हैं विद ऑल द को एक्टर्स। स्वाति इज़ अ ग्रेट को एक्टर प्लस मानसी जी who played my mom, everybody I think Mrinal, Krish, everybody did a great job and I think I loved being the part of this show. मैं बिग बॉस बहुत इन्जॉय करता हूँ। आई थिंक वो ऐसा एक घंटा होता है जब आप सब कुछ भूल के उस एक अलग दुनिया में चले जाते हो एंड यू एन्जॉय वट एवर इज हैपनिंग इन द हाउस। आई थिंक आई एन्जॉय वॉचिंग बिग बॉस। जो इनिशियल डेज में रोडीज आता था शुरू में, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। आई एम नॉट अ वेरी आर्डेंट फॉलोअर ऑफ रियलिटी शोज़। खतरों के खिलाड़ी भी मैंने शुरू में देखा था, अभी मैं देख नहीं पाता हूँ। कभी कोई क्लिप सामने आ जाती है तो मैं देख लेता हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली वांट टू विश ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट। मे दे डू ग्रेट एंड कम बैक सेफ। तो हाँ, और खतरों के खिलाड़ी ही मेरा ऐसा शो होगा जो मैं करना चाहूँगा। कौन से शो के लिए? बिग बॉस के लिए आई थिंक आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड अभी। आई थिंक यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू एंटर बिग बॉस और मुझे लगता नहीं है कि मैं उस तरीके से अभी तैयार हूँ कि मैं बिग बॉस एंटर कर पाऊँगा। डेफिनेटली आगे का कुछ कह नहीं सकते, बट फॉर नाउ आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द बिग बॉस हाउस। थैंक यू। हाय रावा सिद्धांत। हाँ जी, ओके, पहले तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड और नाउ आइकॉनिक अवार्ड, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? थैंक यू एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। आई थिंक मेरे जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। ये शो और ये किरदार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर recognizing and honoring my work. So thank you. एंड हाउ डज इट फील जब आपके काम को सराहा जाता है, अवार्ड से सराहा जाता है? अभी हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला, जी उसके बारे में, और आज आइकॉनिक अवार्ड है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहूँगा कि मतलब जितनी बार भी मेरा काम पसंद किया जाता है, आई जस्ट वांना से थैंक यू बप्पा, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो यार दोस्तों, मैं ऐसे ही काम करता चला जाऊँगा, मैं रुकूंगा नहीं। आप लोगों का प्यार नहीं रुकना चाहिए और मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। कार्टल की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला आपके
जी जी उसके बारे में सीजन 2 कब आएगा? पीपल आर यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कार्टेल का सीज़न 2 कब आएगा। मैं बस अपनी फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपको बहुत ही जल्दी बता सकूँ कि ये कब होगा, क्या होगा उसके बारे में। सो बट जस्ट विश मी ऑल द लक। थैंक यू। आने वाले समय में क्या कुछ आने वाला है आपकी तरफ से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? बहुत सारा काम, बहुत सारा काम, बता नहीं सकता आपको, लेकिन बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम। बट थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू। I want to thank my daughter because after I got this award for my daughter, like I've been considered by them as a mom influencer of the year, and I think that's a very special and special award for me because it's because of my daughter. काफी वीडियोस वायरल होते हैं, इवन इन योर ब्लॉग्स आल्सो देखते हैं, काफी लव प्यार मिलता है फैंस की तरफ से और आज अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? I think Tara is a very loving and very giving child, and so when I was coming, I told her that Tara might get an award, and all thanks to you that you got me back in the business, and and I think I've got an award. It's because of her, because people love us so much, and eventually they've started loving me also. Wearing a Indian sari, tell us something about it. So because I was getting mom influencer award, I thought I'll wear a sari, and Tara likes me wearing sari than western clothes. And any upcoming projects from your side? Yeah, I'm considering now to get back to work, so yeah, soon. To each its own, I feel. I think it's just the upbringing of the parents, how they want to deal with the child. It's good and bad both. एक था It's rolling? Okay. So it's always a wonderful feeling, you know, coming to this platform and coming to any podium and receiving an award, because an award is actually a recognition of all the hard work which we put in throughout the whole year, and it's the fans, you know, the fans are not able to reach, but it's their well-wishes, it's their viewership, it's their love which accumulates and, you know, makes this beautiful trophy and is being presented to us. See, this is the category. Best actor. It feels amazing. It's obviously, it's always a dream for an actor to, you know, get the best actor award, you know, rather than any other category. So when you are recognized for your hard work, for your performance, for your skill which you have put in, it's the best. Yeah, so this has been designed by my friend who's from Delhi, Mr. Amit Dhawan. So he told me I'll give you an Arkhali look, and I said I'll look like a girl, but he said no, it'll look very good because it'll give you a break from what you're already wearing, because I wanted to, you know, be into my character of the same show which I was working on. I'm having a very royal character into that. So it was the same, you know, replication of that same look. Thank you so much. अरे तो ले रहा है ना तो बन जाएगा, ले रहा है ना प्रॉपर। मैं बहुत खुश हूँ। सेकेंड टाइम मुझे इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड 2022 में सीज़न 8 पे अवार्ड दिया जा रहा है, और द कैटेगरी इज़ ऑल्सो प्रीटी इम्प्रेसिव एंड कन्विंसिंग कि आप सब लोगों ने एक्सेप्ट किया द मोस्ट गुड लुकिंग सरदार and the best performer of 2022. So this is what I have received and got a tag for 2022. नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा आएगा अगस्त एंड में, होपफुली, जो डेट्स गिवन है. सो लेट्स सी, यू गाइस शुड वेट फॉर इट. मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मुझे इस रोल में, इस अवतार में एक्सेप्ट किया और इतना सारा प्यार दिया. और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए हर रोल में, हर कैरेक्टर में, हर लुक में. सो सत श्री अकाल जी.
कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दिस अवार्ड्स एंड आई एम नॉमिनेटेड, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ऑल्सो कोविड में हम लोग बहुत लो हो गए थे, हम सिर्फ काम कर रहे थे सिर नीचे करके, बट अभी फाइनली वो अप्रिसिएशन का टाइम आ गया है एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप आई विल. Yes, I'm nominated for the most versatile actress of 2022. I think शो को इतना प्यार मिला है, we didn't expect कि second season को इतना प्यार मिलेगा, but we got that love because of our story, because of our crew, and I just hope कि आप लोग हमें प्यार करते रहे और मैं हर साल यहाँ पे nominate होती रहूँ. The theme was gala, so obviously मैं थोड़ा गाला मतलब नाइस गाउन पहन के आई हूँ. आई होप आपको अच्छा लगे. थैंक यू सो मच. रुक जा शिवम भाई. चमचमाती ट्रॉफी और धीरे धीरे किस्मत भी चमका दी है. लॉकअप से निकलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरा पहला अवार्ड है, द मोस्ट आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ OTT अवार्ड. तो अच्छा लग रहा है यार, मतलब धीरे धीरे तरक्की हो रही है ज़िंदगी में, खुश हूँ. बाकी देखिए, अभी इस वक्त पृथ्वी पर इतने टीवी नहीं है जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो OTT एक ऐसा एक जैकपॉट ही कह लो हमारे एक्टर्स के लिए आया कि मतलब हम लोग सारे, हमें मौका मिलता है. पहले एक्टर्स को कुछ ही चुनिंदा एक्टर्स होते थे जिनको मौका मिलता था परफॉर्म करने का, बट OTT ऐसा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी, वेब सीरीज़ वगैरह, शोज़, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अब वेब सीरीज़ भी आती हैं जैसे, तो कोशिश करता हूँ, कोशिश कर ही रहा हूँ अच्छे से कोई वेब सीरीज़ मिले तो भोलेनाथ की कृपा हो जाए, अच्छी हो. प्रतीक सहजपाल ऑल द वे, बूम्बा मेरा भाई, मेरी जान, बेस्ट है. काफ़ी अच्छे से पोस्ट कर रहा है यार वो, वहाँ पर है, मतलब मेरा दिल भी वहीं, जो वो करता है, कुछ भी वो करे अच्छा लगता है अपने को यार. महादेव ने चाहा तो ज़रूर होगा, बाकी अभी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, तो अभी जैसे जैसे हंसते हंसते कट जाए रिश्ते, जी रहे हैं हर लम्हे को. नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मैंने बता ही रहा हूँ वैसे लोगों को, नेक्स्ट मंथ से हम लोग शूट करेंगे शुरू, और 2-3 महीने में ऑन फ्लोर होगा. अच्छा कैरेक्टर है, मज़ा आएगा आप लोगों को, हंसी रहेगी आपके चेहरे पर. थैंक यू सो मच. आज क्या है? डॉक्टर्स डे. आज नहीं, परसों है, 1 तारीख को, तो कल है. तो 12 बज गए क्या? अभी 12 नहीं बजे. डॉक्टर्स डे हमारी जो भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है हमारे देश की और पूरी पृथ्वी पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सभी लोगों ने कोविड में हमारी बहुत सहायता करी है, और लाइक दे हैव कम आउट टू बी एज वॉरियर्स. नॉट कम आउट टू बी, बट वो हैं ही वॉरियर्स. असली जो जीवन दाता देने वाले वो हैं भगवान जी के बाद. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी डॉक्टर्स को, थैंक यू सो मच. आप लोग हमारे साथ हैं और आप लोगों की पढ़ाई, इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है हम लोगों को ठीक करने में. थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, लव यू ऑल. जनता भाई हाँ, थैंक यू सो मच. मुझे इंटरनेशनल आइकॉनिक का ये सेकंड अवार्ड मिला. जो पहला अवार्ड मिला था मुझे बेस्ट जोड़ी का मिला था, और मुझे जिया मानी को, तो इस बार जो मुझे अवार्ड मिला बेस्ट पति का मिला है, और मेरी बीवियाँ हैं नहीं. सो थैंक यू सो मच जिया मानी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरी को एक्टर ऑन स्क्रीन जो मेरी वाइफ है, और थैंक यू सो मच. नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूँ. अभी बात चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, जा रहे हैं, है ना. तो जैसे कुछ होगा तो डेफिनेटली. मैं फैंस को बस यही कहना चाहूँगा, जैसे आपने हमारे साथ प्यार बना के रखा है, वैसे अपना प्यार बना के रखें, प्यार देते रहे, हमारे साथ रहे. एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू.
मेरे साथी ना तो अभी बहुत टाइम हो गया ना, साथी बंद हुए तो 2017 में बंद हुए, तो उसके बाद साथी 2 शुरू हो गया, उसके बाद तेरा मेरा साथ हो गया, अभी तो बहुत टाइम हो गया उसके लिए। मिस तो होती है बिकॉज अभी ये देखो ये बच्चे साथ में खड़े हैं हमारे। सॉरी आज चल रही है अभी बात, जैसे कुछ होगा लेट यू नो। थैंक यू सो मच। मैं आपके वही सवालों का अलग जवाब दूंगी। क्या कुछ कहना चाहती हूँ मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं आई थी, मुझे लगा था बहुत लेट हो गई हूँ, मुंबई में बारिशें बहुत तेज़ हैं, बट आई केम हियर एंड आई गॉट दिस, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई थिंक जब भी अप्रिसिएशन मिलता है वो अच्छा ही लगता है, बिकॉज आप इतनी मेहनत से काम करते हैं। एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ऑफ द ईयर, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा मिले, क्योंकि आई वाज 17 कैरेक्टर्स इन 9 months, तो विद इन 1 कैरेक्टर, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे लगता है हर शो में हम अपना इतना दिल और जान डालते हैं कि हर शो बहुत प्यारा होता है, और मेरी जर्नी 7 years की इंडस्ट्री में इतनी ब्यूटीफुल रही है, तो मेरे लिए सभी बहुत प्यारा है। थैंक यू। चले अंशु। मैं बस मेरे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहूँगी, और ऑडियंस से मैं एज करिश्मा कनेक्ट होके ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ थैंक यू कहने के लिए। आप सबको मैं जब भी रियल लाइफ में मिलती हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप मुझे सिर्फ एक टीवी स्क्रीन के थ्रू जानते हैं, या ये कनेक्शन जो आप में और ये रिश्ता क्या कहलाता है में है, ये सिर्फ एक टीवी स्क्रीन के थ्रू है। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बस जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, तो वो फीलिंग बहुत ही ओवरवेलमिंग है। और थैंक यू सो मच फॉर द वर्ड्स एंड फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। मुझे ये अवार्ड मिला है बेस्ट बहन का अवार्ड मिला है, जो मैं ये रिश्ता का कहलाता है में जो मेरा किरदार है अपनी बहन के साथ, वो एक लव हेट रिलेशनशिप है, और वो हेट के अंदर ही जो प्यार छुपा है, वो प्यार के अंदर ही जो हेट छुपा है, उसे मैंने किस तरह से निभाया है, उस बेसिस पे मुझे ये अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच। Where should I look? In the camera. Okay. Yeah, I've been part of this award earlier also, and I'm glad to be part of it now. And awards के बारे में यही कह सकता हूँ कि it is appreciation of your work, and when it's given, you feel very proud and you feel happy about it. जी बिल्कुल, काफ़ी डिफ़िकल्ट था, इतनी बारिश हो रखी है, इतना जाम था। 1% तो मुझे लगा कि मैं वापस घर ही चले जाता हूँ, लेकिन फिर देन पॉजिटिव थिंकिंग, आई थॉट कि अवार्ड मिल रहा है तो जाना ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच गौतम के किरदार को अप्रिशिएट करने के लिए और प्यार करने के लिए, और ये बोलना चाहूँगा कि हमारा शो काफ़ी अच्छा शो है। देखिए, आप जितना देखेंगे हमें उतनी ही खुशी होगी। पहले तो मुझे पता नहीं है कि खतरों के खिलाड़ी कौन कौन कर रहा है, मुझे पता नहीं है। I would say देखिए बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि मैं करना नहीं चाहूँगा, और बट यू नेवर से नेवर वाली बात होती है। अभी फ़िलहाल खतरों के खिलाड़ी फिर भी मैं पसंद करूँगा अगर उसमें एनिमल क्रूअल्टी ना हो।